Welcome to my channel Gurumandra with Sunil Kumar. Today we are here to study class 10 history chapter number 1. Today's topic is the strange case of Britain, the unification of Britain. As you might have heard, the unification of Britain was not because of any sudden upheaval or revolutions. It was the result of a long drawn process. So, before getting into the detailed explanation of the entire process of unification of Britain, we must try to know, we should try to know the political formation of the British Isles. When you look at this map, you can see a group of political unions or entities here. Here you can see Scotland. In yellow colored portion you can see Scotland over here. This is Scotland. Then below that this is England. The green colored portion over here, which is England. Then you can see Wales nearby. It is Wales. This area is Wales. Then you can see Ireland. So these are the different political entities within the British Isles. Now we will try to know the difference between Great Britain, United Kingdom, British Irish. So how they have been formed will be discussed in this particular topic. So let me tell one thing. When you look at the map, you can see when Scotland, England and Wales were combined together, it had become Great Britain. जब हमने स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड को और वेल्स को एक साथ कंबाइन किए हैं तो उससे क्या बना? आपका ग्रेट ब्रिटेन बना. क्या बना? आपका ग्रेट ब्रिटेन बना. ग्रेट ब्रिटेन बना. When we combined Scotland, England and Wales, it came to be known as Great Britain. When we look back to the history, England, Wales was combined together in 1542. तो जब आप मुड़कर इतिहास को देखते हैं तो आपकी वेल्स और इंग्लैंड की मिलन कब हुआ था? 1542 में हुआ था. कब हुआ था? 1542 में हुआ था. आपकी वेल्स और इंग्लैंड का मिलन कब हुआ था? 1542 में हुआ था. कब हुआ था? 1542 में हुआ था. ओके, 1542 में हुआ था. आगे देखेंगे, इतिहास को देखते हैं. बाद में वेल्स को कनेक्ट कर लिया गया. उसके बाद स्कॉटलैंड को भी क्या किए गए हैं? स्कॉटलैंड को भी आपके इंग्लैंड के साथ मर्ज किया गया है. कब किया गया था? 1707 में किया गया था. तो स्कॉटलैंड को कब मर्ज किया गया था? 1707 में किया गया था. कब किया गया था? 1707 में किया गया था. 1707 में किया गया था. 1707 में किया गया था. Now, like under the Act of Union in 1707, Scotland was also merged with England. तो हमने देखा 1542 में वेल्स को इंग्लैंड के साथ जोड़ा गया. 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड को भी क्या किया गया? इंग्लैंड के साथ जोड़ा गया. बाद में आपकी जो नॉर्थर्न आयरलैंड है उससे भी क्या कर दिया गया? द एक्ट ऑफ यूनियन 1801 के तहत, एक्ट ऑफ यूनियन 1801 के तहत क्या किया गया है? 1801 के तहत
1801 के तहत किसके साथ जोड़ा गया? इंग्लैंड के साथ जोड़ा गया। तो जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को एक साथ किए गए, इसको हम लोग क्या कहें? ग्रेट ब्रिटेन कहें। 1801 में जब फोर्सफुली भी एक्ट ऑफ यूनियन के तहत नॉर्दर्न आयरलैंड को किसके साथ जोड़ा गया? इंग्लैंड के साथ जोड़ा गया, तब ये क्या बना? ये यूनाइटेड किंगडम बने। तो व्हेन नॉर्दर्न आयरलैंड वाज मर्ज्ड विद ग्रेट ब्रिटेन, it was came to be known as the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So this is how Great Britain and the United Kingdom have been came up. Now this understanding is very must when you go to the detailed study of the unification of Britain. Then we know that the people live in Scotland is called Scottish. The people of England is known as English. The people in Wales is known as Welsh, and the people in Ireland is called Irish. So these are the ethnic groups lives in this group of islands or the political entities that we have seen in the British Isles. So all these island groups are togetherly known as British Isles. Scotland, England and Wales is togetherly known as Great Britain. When Northern Ireland was combined to the Great Britain, it was came to be known as United Kingdom. So there are 4 different countries altogether in the United Kingdom. They are Scotland, England, Wales and Ireland. You know, the capital of England is London. The capital of Wales is Cardiff. The capital of Northern Ireland is Belfast, and the capital of Scotland is Edinburgh. So this understanding will definitely going to help you to understand the entire process of the unification of Britain in the later part of the explanation. So try to understand this section very well. Before we get into the detailed explanation of the unification, you have to understand 2 important terms here. One is Catholics and other is Protestants. First of all, try to understand who are known as Catholics and who are Protestants. When we talk about different religions have different religious sects. When we talk about Hinduism, there are Vaishnavism and Shaivism. When we talk about Jainism was divided into 2 sects, Digambaras and Shvedambaras. When we talk about Jainism was also divided into 2 sects, Hinayas and the Mahayanas. Likewise, Protestants and Catholics are 2 different sects of Christianity. The major difference between them is that Catholics believe the Bible, traditions and the Pope, while the Protestants believe the Bible only. When we talk about the Catholic Church, it teaches that salvation comes through the church, while Protestants say through the faith in Jesus alone and having personal relationship with God will give you salvation. So Protestants believe that they receive salvation through God, but Catholic Church believes that they get salvation through church. That is the major difference between Catholics and the Protestants. Protestants came up. When we talk about Protestants, they came up through protest. जब आप बात करते हैं प्रोटेस्टेंट्स की, तो वो प्रोटेस्ट से बनकर आए हैं। 1500s में क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारी कमियां थी, तो लोगों को ये लगता था कि देयर आर many problems exist within the Christianity.
उन कमियों को क्या करने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। तो मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों के नेतृत्व में चर्च के जो अत्याचार है, अधिक अधिकारों की दुरुपयोग है, ये सब के खिलाफ क्या किए गए हैं, प्रोटेस्ट किए गए हैं। उससे जो नए सेक्ट उभर कर आए हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। सी फॉर क्रिश्चियन एंड सी फॉर कैथोलिक्स। जो द ओल्डेस्ट फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इज कैथोलिक्स। वो बाइबल में विश्वास करते हैं, वह ट्रेडिशंस में विश्वास करते हैं और पोप में विश्वास करते हैं। द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च, आपकी कैथोलिक चर्च की जो हेड है पोप, द रिलीजियस गुरु ऑफ क्रिश्चियंस स्पेशली द कैथोलिक्स, उन्हें पोप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में कौन विश्वास करते हैं, आपकी कैथोलिक्स विश्वास करते हैं। और जो डिफरेंस है आपकी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में, उसको भी हम समझने की कोशिश। When we talk about the major differences between the Protestants and the Catholics, here are some points that elaborately describe you the major differences between Protestants and the Catholics. Protestant churches were plain and simple. Protestants की जो गिरजाघर होते थे वो बहुत ही साधारण और सरल तरीके से निर्माण किया गया था। Catholic churches were richly decorated, जबकि कैथोलिक्स की जो चर्चेस है, गिरजाघर है, वो शानदार तरीके से बनाई गई थी। नो स्टैचू और आर्ट वेर देयर इन दी प्रोटेस्टेंट चर्चेस, वाइल लॉट्स ऑफ स्टैचूज एंड आर्टवर्क वेर इन द कैथोलिक चर्चेस। प्रोटेस्टेंट्स की जो गिरजाघर होते थे उसमें कलात्मक रचनाएं और कलात्मक सृष्टियाँ बहुत कम होती थी और मूर्तियों की बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किए जाते थे, बल्कि कैथोलिक चर्चेस में बहुत सारी मूर्तियाँ, जीसस की, मरियम की और बहुत सारी मूर्तियों का इस्तेमाल किए जाते थे और शानदार रचनात्मक तरीके से उसे सजाया गया था। जब हम प्रोटेस्टेंट की बात करते हैं, द प्राइड्स वॉर प्लेन गारमेंट्स, आपकी जो पादरी है प्रोटेस्टेंट्स की चर्चेस में वो बहुत ही साधारण कपड़े पहनते, स्पेशली वाइट क्लॉथ्स वेयर प्रेफर्ड बाय द प्रोटेस्टेंट प्राइड्स। आपकी जो प्रोटेस्टेंट्स की पुजारी है या फिर आपकी पादरी है वो सरल एवं सफ़ेद रंग की कपड़े पहनते थे। वाइल इन कैथोलिक चर्चेस प्राइस्ड वॉर रिच गारमेंट्स, जबकि आपके कैथोलिक चर्चेस के जो पादरी हैं वो बहुत ही धनी और एलाबोरेटली सजाए गए, यानी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क इत्यादि किए हुए जो शानदार वस्त्र है वो पहनकर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। इन प्रोटेस्टेंट चर्चेस द सर्विसेज वाज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज नॉट इन लैटिन लैंग्वेज। आपकी प्रोटेस्टेंट्स की जो चर्च है उसमें जो प्रेयर होता था वो क्षेत्रीय भाषाओं में होता था, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होता था। जब आप बात करेंगे प्रोटेस्टेंट चर्चेस की तो इसमें एक खासियत है कि आपकी जो प्रेयर कंडक्ट होता था वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होते थे, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में होते थे। बट इन द कैथोलिक चर्चेस दे वर conducted in Latin language. So these were the major differences between the Catholics and the Protestants. I hope you will clearly understood who are Protestants and who are Catholics. Students, now we will study the strange case of Britain. It means the unification of Britain. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. When we talk about Great Britain, the formation of Great Britain is mentioned by some scholars as the model of nation. तो कुछ इतिहासकारों की ये मानना है कि ब्रिटेन की जो फॉर्मेशन है वो किसकी एक मॉडल है, आदर्श है, नेशन स्टेट्स का एक आदर्श है, बिकॉज इट वाज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। क्योंकि आपकी ग्रेट ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है वह किसके परिणाम नहीं थे, कोई अचानक हुई
विद्रोह या क्रांतियों का परिणाम नहीं थे. There were no bloodshed for the formation of Britain, as we have seen in the formation of other countries like Germany, Italy, etc. So some historians argues that the formation of Great Britain is an example of मॉडल ऑफ नेशन स्टेट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ब्रिटेन जो है किसकी एक मॉडल है, नेशन स्टेट का एक मॉडल है. व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन, it was not the result of sudden upheaval or revolution. Here you can see the statement is very important when you write the answer, how Britain unified. You have to mention this sentence in the very beginning of your answer. The formation of Britain was not the result of a sudden upheaval or revolution. आपकी ब्रिटेन की जो फॉर्मेशन है यानी एकीकरण है वह कोई सडन अपहीवल का परिणाम नहीं था. सडन अपहीवल मीन्स एकाएक हुई विद्रोह या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि क्या था? इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. ये लंबी समय तक चली प्रक्रियाओं का परिणाम था. तो ये प्रक्रियाएं क्या थी जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ है, वो हम नीचे पढ़ेंगे. तो ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की जो फॉर्मेशन है वो क्या नहीं था, अचानक हुई कोई विद्रोह या संघर्ष या क्रांति का परिणाम नहीं था. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. There were no bloodsheds in the entire process of the formation of Britain like other countries. That is why इसे क्या माना जाता है? मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट माना जाता है. तो when we talk about Britain, there was no British nation prior to the 18th century. तो 18वीं शताब्दी के पहले तक कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था. प्रायर मीन्स बिफोर, पहले 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं था. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड इन द ब्रिटिश इसिल्स वेयर. अब इस लेक्चर के शुरुआत में हमने आपको एक मैप एक्सप्लेनेशन बताए हैं. वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आपकी ब्रिटिश इसिल्स यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है उसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और आयरलैंड है, नॉर्थर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. ये अलग अलग नेशंस जो है पहले रहता था. पहले क्या नहीं थे, आज की जो ब्रिटेन आप देख रहे हैं वो नहीं थे. 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन नाम का कोई राष्ट्र था नहीं. ये ब्रिटिश इसिल्स के नाम से जाने जाते थे. मतलब वहाँ पे आपकी 4 डिफरेंट आइलैंड हुआ करते थे, जिसमें एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है, एक आयरलैंड है और आपकी इंग्लैंड है. तो द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड इन द ब्रिटिश इसिल्स वेयर एथनिक पॉइंट्स. आपकी ब्रिटिश इसिल्स में यानी जो ब्रिटिश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको ब्रिटिश इसिल्स कहा जाता है, उसमें स्कॉटलैंड थे और स्कॉटलैंड के लोगों को क्या कहा जाता था? स्कॉटिश कहा जाते थे. इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाता था, वेल्स के लोगों को वेल्श कहा जाता था और आयरलैंड के लोगों को आप क्या कहते थे? आयरिश कहते थे. तो हियर यू कैन सी द एथनिक people who lived in England were known as English. People those who lived in Wales were called Welsh. People in Scotland were called as Scots, and the people in Ireland were called as Irish. So these were the ethnic groups lived in the British Isles. जो हमने मैप में शुरू में देखा था उसमें आपने इन सारे देशों को देखे हैं, यूनियंस को देखे हैं. स्कॉटलैंड को, वहाँ रहने वाले जो नस्लीय वर्ग के लोग हैं उनको स्कॉटिश कहते हैं. इंग्लैंड में रहने वाले जो एथनिक ग्रुप है उन्हें इंग्लिश कहते हैं. वेल्स में रहने वाले जो एथनिक ग्रुप है उनको वेल्श कहते हैं और स्कॉटलैंड में रहने वाले जो एथनिक समूह है उसे स्कॉट कहते हैं और आयरलैंड में रहने वाले जो एथनिक समूह है उसे आप आयरिश कहते हैं. So these are the different ethnic groups lives within the British Isles. All these ethnic groups had their own culture and political traditions. अब आप स्कॉटलैंड की बात, स्कॉटिश की बात करें, आयरिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें, वेल्श की बात करें,
ये सभी लोगों का क्या था, अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। ऑल द पीपल लिव्स विद इन द ब्रिटिश इसल्स हैड देयर ओन ट्रेडिशंस एंड कल्चर। अब आपकी ये चारों ब्रिटिश आइलैंड्स ग्रुप आइलैंड्स थे, उसमें रहने वाले लोगों की अपनी अपनी सभ्यता और अपनी अपनी परंपराएं थी। वो अलग अलग नस्लीय वर्ग के लोग थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन द वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर। अब ये जो चारों देश हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिवान किस देश बनकर उभरा? इंग्लैंड जो है एज ए नेशन बहुत लगातार तेजी से धन, शक्ति और अपने महत्व को तेजी से बढ़ाया। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। अब जो आपकी ब्रिटिश इसल्स है, ब्रिटिश आइलैंड ग्रुप्स है, जिसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, वेल्श है, इसमें सारे देशों में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में कौन उभर कर आए? इंग्लैंड जो है सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आए। बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड एर्लियर इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 18th century, they grew their wealth and their importance are tremendously increased। तो ये जो धन, दौलत, शक्ति और इन्फ्लुएंस बढ़ा है, उससे बाकी जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ब्रिटिश इसल्स में, उस पर किसकी दबदबा होने लगा? आपकी ब्रिटेन की दबदबा होने लगा। So the British Parliament which had seized the power from the monarchy in 1688। अब जब उसकी ताकत बढ़ गई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है क्या करने लगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ की मोनार्की से अधिकार को 1688 में क्या कर लिए? पावर को सीज कर लिए, अपने वश में कर लिए, सीज कर लिए यानी कैप्चर कर लिए। एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which nation state with England at its center came up to be forged। अब लंबी समय तक चली जो चर्चाएं हैं और जो लंबी समय तक चली प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशंस है, उसके बाद जो है मोनार्की अपने आप को सरेंडर कर दिए। मोनार्की सारे पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में दे दिए। Under the Act of Union of 1707 between England and Scottish that resulted in the formation of the United Kingdom। अब आप देख रहे हैं कि 1688 में at the end of the protracted conflict, लंबी समय तक चली युद्ध के बाद जो है क्या हुआ? जो मोनार्की है उससे पावर सीज कर लिए गए और किसका निर्माण किया गया? एक नई नेशन स्टेट के निर्माण कर दिए गए जिसकी सेंटर कहाँ था? इंग्लैंड था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड, उसके बाद 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया। हियर वी कैन सी एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया 1707 में, जिसमें इंग्लैंड जो है क्या कर लिए? स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिए, अपने साथ मिला लिए स्कॉटलैंड। एंड इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यानी 1707 में किसके तहत? यूनियन एक्ट ऑफ 1707 के तहत जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने साथ जोड़ लिया गया तो वो क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन बन गया। हियर वी कैन सी, आपने शुरुआत में जो मार्क था उसमें हमने बताया था इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को जब कंबाइन कर लिया गया, जब 1707 में कौन से एक्ट के तहत? द यूनियन एक्ट ऑफ 1707 के तहत जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया तो वेल्स को पहले मिला दिया गया था। वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब आपस में कंबाइन हुए तो वो क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। which meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड क्या कर पाए? अपना जो इन्फ्लुएंस है वो किसके ऊपर डाल पाया? स्कॉटलैंड के ऊपर डाल पाया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट was henceforth dominated by English members। यानी स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज कर लेने के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें किसकी दबदबा चलते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स की डोमिनेंस चलता था।
The growth of the British identity mean the Scottish distinctive culture and the political institutions were systematically suppressed. अब धीरे धीरे इंग्लैंड की पूरे इंग्लिश इसल्स में ब्रिटिश आइलैंड ग्रुप में बाकी देशों के बीच में जैसे जैसे इंग्लैंड की दबदबा और उसकी ताकत और इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उनकी दबदबा को बना रखने के लिए क्या किया गया, स्कॉटलैंड की जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, जो स्पेशल कल्चर है और उसकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, दे वेर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। वो सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था, उनकी अलग एक अपनी सभ्यता थी, वो सबको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यानी इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, सप्रेस कर दिए। द Catholics clans that inhabited in the Scottish Highlands suffered terrible repression। देखिए यहाँ पे शुरुआत में हमने इसलिए कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के डिफरेंस और उसकी डेफिनेशन इसलिए समझाए थे क्योंकि आपको यहाँ पे ये समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब आपको बता रहे हैं जो कैथोलिक्स ग्रुप थे आपकी क्रिश्चियनिटी में, स्कॉटलैंड की जो हाईलैंड एरिया है, हाईलैंड एरिया मतलब द माउंटेनस रीजन ऑफ स्कॉटलैंड इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले कैथोलिक्स को क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा रेप्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा उनको क्या किया गया, सताया गया, उनकी कल्चर को, उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर दिए गए, सप्रेस कर दिया गया, ताकि किसकी दबदबा बने रहे, डोमिनेंस बने रहे, आपकी जो इंग्लैंड है उसकी दबदबा बने रहे। इसके लिए स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वाले जो कैथोलिक्स लोग हैं उनको क्या कर दिया गया, टेरिबली रिप्रेस कर दिया गया, मतलब बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही सख्त रूप से क्या किया गया, उनको दबाया गया, उनको सप्रेस और रिप्रेस कर दिया गया। Whenever they attempted to assert their independence, हाँ खास करके तब उनको क्या किए गए, सप्रेस और रिप्रेस किए गए जब भी वो क्या करने की कोशिश किया गया, जब भी वो आज़ादी पाने की या अपने आप को इंग्लैंड की जो डोमिनेंस है उससे सेपरेट करने या अलग करने, खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश जब भी किए गए, तो जो स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में रहने वाले जो कैथोलिक्स है, यानी स्कॉटिश हाईलैंड्स मीन्स माउंटेनस रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो स्कॉटिश आइलैंड्स के लोग हैं उनको टेरिबली क्या किया गया, सप्रेस कर दिया गया, खास करके तब जब वो क्या करने की कोशिश करते थे, whenever they tried to achieve their independence, whenever they tried to assert their independence, they were severely suppressed or repressed। The Scottish Highlands were forbidden to speak their Gaelic language, मतलब उन पर इतनी जोर से अत्याचार किया गया कि स्कॉटिश आइलैंड्स में रहने वाले लोगों को अपनी जो मातृभाषा है गैलिक लैंग्वेज उसे बोलने से फॉरबिडन किया गया, मना कर दिया गया, रोका गया। फॉरबिडन मीन्स टू स्टॉप देम फ्रॉम स्पीकिंग देयर ओन रीजनल लैंग्वेज, द गैलिक लैंग्वेज, और दे वेर फॉरबिडन टू वियर देयर नेशनल ड्रेस। यहाँ तक कि स्कॉटिश आइलैंड्स के जो कैथोलिक्स क्लान्स के लोग हैं उन्हें अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से मना कर दिया गया। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ numbers were forcibly driven out of their homeland, और भारी संख्या में जो स्कॉटिश आइलैंड्स में रहने वाले कैथोलिक क्लान्स के लोग हैं उनको क्या कर दिया गया, ज़बरदस्ती अपनी मातृभूमि से खदेड़ दिया गया। They were driven out of their motherland forcefully whenever they tried to assert their independence and tried to oppose the dominance of the English over them। Now we have seen how Scotland was incorporated with England forcefully under long discussions and deliberations। Ireland also suffered a similar fate। तो जिस तरीके से जोर ज़बरदस्ती इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज किया और ग्रेट ब्रिटेन के निर्माण किए, कुछ वैसा ही फेट
किसका भी रहा है, आपका आयरलैंड का भी रहा है। तो जो हसरत किसके साथ हुआ, स्कॉटलैंड के साथ हुआ, कुछ वैसा ही किसके साथ भी हुए, आयरलैंड के साथ भी हुए। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट आयरलैंड, आयरलैंड जो है किस में बटा हुआ है, बहुत ही अगर गहराई से देखा जाए तो ये देश कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बटा हुआ है। The two important clans in the Christianity, Catholics and the Protestants. The English helped the Protestants of Ireland to establish the dominance over largely Catholic country. जब आप बात करते हैं आयरलैंड की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कैथोलिक्स रहते हैं, लेकिन इंग्लैंड और इंग्लिश लोग प्रोटेस्टेंट होने के कारण वो आपकी आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं और क्या करने के लिए मदद करते हैं। बीइंग ए लार्जली कैथोलिक कंट्री, इवन इफ इट इज ए कैथोलिक कंट्री, आपके इंग्लैंड आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को क्या देते हैं, मदद करते हैं अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए। कैथोलिक्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वेर सप्रेस्ड। आप जो कैथोलिक्स ब्रिटिश अधीनता के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उनकी कोशिशों को क्या किया गया, सप्रेस कर दिया गया, उनको दबाया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फटाउन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन इन 1798, यानी 1798 में वॉल्फटाउन के नेतृत्व में ब्रिटिश डोमिनेंस जो आयरलैंड पर जमाए गए हैं उसके विरोध किया गया, लेकिन उनकी कोशिशों को भी क्या कर दिए गए, सप्रेस कर दिए गए। आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और आपके आयरलैंड को भी स्कॉटलैंड के तरह ज़बरदस्ती क्या कर लिया गया, 1801 की एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। जिस तरीके से 1707 के यूनियन एक्ट के तरह, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत किसको जोड़ा गया था, स्कॉटलैंड को अपने साथ जोड़ा गया था, कुछ उसी तरीके से ज़बरदस्ती 1801 में 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड किसको भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, आयरलैंड को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब जो है न्यू ब्रिटिश नेशन का गठन किया गया, जिसमें किसको बढ़ावा दिए गए, ब्रिटिश कल्चर को डोमिनेंस देते हुए, यानी पूरे ब्रिटिश कल्चर को पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, आइलैंड कंट्रीज में अब जो है सबसे ज़्यादा दबदबा किसके हो गया, ब्रिटिश का हो गया। तो ब्रिटिश कल्चर का हो गया, आप वो सारे इलाकों को क्या कर लिए, अपनी कब्जा में कर लिए। आप लोगों ने देखा कि पहले वेल्स को, फिर स्कॉटलैंड को, फिर आप आयरलैंड को भी क्या कर लिए गए हैं, अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन के जो नीति है उसके तहत शामिल कर लिया गया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, God save our noble king, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as a subordinate partners in this union। जब आपके आयरलैंड को क्या किया गया, फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड किया गया, यूनाइटेड किंगडम की फॉर्मेशन हुआ, यानी जब आपने वेल्स और स्कॉटलैंड को एक साथ किए थे तो ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन के तहत जब आपने नॉर्थर्न आयरलैंड को क्या कर लिए, अपने साथ जोड़ लिया गया, तो किसके गठन हुए, यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। तो आपने देखा कि हमने मैप की एक्सप्लेनेशंस दी थी इस वीडियो की शुरुआत में, उसमें हमने कहा था स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों को एक साथ कंबाइन करके क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन बना। और बाद में 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन 1801 के तहत जब आयरलैंड को फोर्सफुली क्या किए गए, ग्रेट ब्रिटेन के साथ जोड़े गए हैं, उससे क्या बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। नाउ आफ्टर Ireland was incorporated to Great Britain, the United Kingdom has been formed,
After this, followed by the forceful incorporation of Ireland, what they did, a British flag was designed which was called Union Jack. इतना करने के बाद अब ब्रिटेन के एक राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइनिंग हुआ, जिसको क्या कहते हैं, यूनियन जैक कहते हैं. नेशनल एंथम वाज डिज़ाइंड, जिसका नाम था गॉड सेव अवर नोबल किंग. द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रमोटेड. पूरे जो ब्रिटिश इसल्स है, यानी जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसमें किसको प्रमोट किया गया, इंग्लिश को प्रमोट किया गया. एंड द ऑल्डर नेशन सर्वाइव. अब जो बाकी देश है, चाहे स्कॉटलैंड हो, वेल्श हो, इंग्लैंड हो, वो सारे क्या रह गए हैं, सिर्फ सबॉर्डिनेट पार्टनर्स रह गए. दे आर नो इम्पोर्टेंस इन दी एंटायर ब्रिटिश इसल्स. पूरे जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज थे, उसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्श और आयरलैंड, इसमें बाकी सारे जो देश है उसकी कोई डोमिनेंस और कोई आइडेंटिटी और कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा. वो सिर्फ क्या बनकर रह गए, सबॉर्डिनेट पार्टनर्स बनकर रह गए इन दिस यूनियन, जिसमें इन द यूनियन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वेयर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्श एंड इंग्लैंड आर द पार्ट. ऑल अदर कंट्रीज रिमेन्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स. अब ये सारे जो आपकी ब्रिटिश आइलैंड ग्रुप है, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसमें सारे देशों की क्या खत्म हो गया, इम्पोर्टेंस खत्म हो गए, और किसकी डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया गया, ब्रिटेन के डोमिनेंस एस्टैब्लिश किए गए. वो पूरे वो यूनाइटेड किंगडम के लिए अपनी नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किए गए, जिसको यूनियन जैक्स कहा जाता है. एक नेशनल एंथम was prepared, God save our noble king, और English language was promoted in the entire island countries, and all the nations survived only as a subordinate partners in the entire union. This is how Britain was unified. कुछ इसी तरह से किसकी एकीकरण किया गया है, ब्रिटेन की एकीकरण किया गया. When we talk about the unification of Britain in short, first of all, it is important to know that there was no nation like Britain before 18th century. जब हम ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में बात करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं था. There were primary identities like the Welsh, English, Scots and Irish who inhabited in the British Isles. वहाँ पे लोगों की जो पहचान थी कुछ इस तरह से था. स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉट्स कहे जाते थे, स्कॉटिश कहे जाते थे. इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहे जाते थे. आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहे जाते थे, और वेल्स के लोगों को वेल्श कहा जाता था. देयर वर नो नेशन स्टेट्स प्रायर टू 18th सेंचुरी. तब जो है आपको इन 1688 the idea of nation state with England, the Parliament of England seized the power from the monarchy, and through long discussions, Scotland was merged into England. तो आपके 1688 में किस वहाँ की नेशन स्टेट का फॉर्मेशन की विचार आए. उसके लिए क्या किया गया, वहाँ की मोनार्की से अधिकार छीन लिए गए, और 1 जनवरी 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन इसके तहत इंग्लैंड जो है क्या किया गया, आपकी स्कॉटलैंड को क्या कर दिए गए, मिला दिया गया अपने साथ. और किसका फॉर्मेशन हुआ, उससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुआ. 1952 में वेल्श को पहले ही क्या कर लिए गए थे, अपने साथ जोड़ दिया गया था. सो in the entire unification process of Britain, Welsh was merged to England in back in 1952. Then in 1852, and in 1707 Scotland was added, or later the same fate was suffered by Ireland also. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over the largely Catholic country. So when the Protestants started to dominate they organized a protest
under the leadership of Wolfe Tone, but it was failed. Then Ireland was also forcefully merged into England in 1801, which ultimately resulted the formation of the United Kingdom. अब ये United Kingdom बनने के बाद followed by the formation of United Kingdम, वो लोगों ने क्या किया, अपनी एक नेशनल फ्लैग बनाए जिसको यूनियन जैक कहते हैं, नेशनल एंथम डिज़ाइन किए, गॉड सेव अवर नोबल किंग, और एक इंग्लिश लैंग्वेज को पूरे ब्रिटिश आइलैंड ग्रुप जो ब्रिटिश इसल्स है उसमें प्रमोट किए गए, और बाकी जो सब कंट्रीज थे पूरे ब्रिटिश इसल्स में, स्कॉटलैंड, वेल्श और आयरलैंड, जिसमें नॉर्थर्न आयरलैंड को क्या कर दिया गया था, अपने साथ मिला लिया गया था। बाकी जो आयरलैंड की जो निचली पोर्शन है, वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, वो किसके हिस्सा नहीं बने, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं बने। तो जो भी देशों को अपने साथ, जो भी पॉलिटिकल एंटिटीज को पूरे ब्रिटिश इसल्स में अपने साथ इन लोगों ने ऐड किया, वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ क्या बन गए हैं, सबऑर्डिनेट पार्टनर्स रह गए, दूसरी कंट्री की पूरे यूनाइटेड किंगडम में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। तो ये है आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, किस तरीके से ब्रिटेन ने अपनी क्षेत्रीय विस्तार किए और फॉर्मेशन किए, ब्रिटिश यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends. Stay home, stay safe, be happy, have a great weekend, enjoy your life.